So good morning student. Today we have performed IJOD impact test. So objective of our experiment is to determine the toughness of the material through IJOD impact test. Our equipment is impact testing machine and specimen is a rectangular bar और डायमेंशन जो है उसकी वो क्रॉस सेक्शन एरिया 10x10 और 75 mm उसकी लेंथ होती है एंड हैविंग ए वी नोच. उस पर एक वी नोच बनाते हैं जिसकी एंगल जो होता है 45 डिग्री और डेप्थ जो होती है वो 2 mm रखते हैं अपन. ये अपना आइजोड इम्पैक्ट टेस्टिंग मशीन है. इस पर एक ये हैमर लगा होता है. ये हैमर इस एक्सिस ऑफ रोटेशन पर स्विंग कर सकता है. इस पर ये पॉइंटर लगा होता है. ये स्केल होती है जिस पर अपन एनर्जी को मेजर करते हैं डायरेक्ट. और ये इसका एक एनविल है जिस पर अपन स्पेसिमेन को क्लैम्प करते हैं. जो अपना स्पेसिमेन है वो जो क्लैम्प करते हैं वो वर्टिकली कैंटिलीवर करते हैं और जो नोच होता है वो डायरेक्शन ऑफ हैमर की सामने होता है. बिल्कुल नोच को हम बिल्कुल सामने रखेंगे जिस डायरेक्शन में अपना हैमर फ्लो करता है. तो ये इसका बेस है और ये कॉलम है सामने. इस कॉलम पर ये आपका हैमर रोटेट करता है. नाउ इम्पैक्ट टेस्टिंग मशीन सिग्निफाइज टफनेस ऑफ द मटेरियल दैट इज़ द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू एब्जॉर्ब एनर्जी ड्यूरिंग प्लास्टिक डिफॉर्मेशन. टफनेस टेक्स into account both the strength and ductility of the material. There are two distinct type of toughness mechanism and this case it is appropriate to consider notch as very high local stress concentration. First type of mechanism occur in ductile material. This is because very high stresses at the end of the notch produce local yielding of the material and local plastic flow at the crack tip. This has a action of building the sharp tip of the notch and hence reduce the stress concentration effect. The second mechanism occur in fibers, wood materials which have a weak interface. Local tensile stress develop at the front of propagated crack open up the interface and produce a crack sink. The stress concentration at the notch increase with decrease in notch radius. Impact testing machine consists a pendulum suspended from a short shaft that rotates a ball bearing and swing midway between two rigid upright stands support on a rigid base near the bottom of which are the specimen support anvil. The knife edge or strike is slightly rounded. The pendulum can be raised to any desired height and rested at that position. It is supported in the starting position by the catch and can be released by a trigger. The mechanism is to design that the pendulum is not disturbed when the catch is released. Impact strength are generally lower as compared to strength achieved under slowly applied loads. Indian standard method of IJOD impact test consists of breaking a specimen by one blow from a swinging hammer under specified condition. A notch test piece is gripped vertically with the bottom of the notch in the same plane as the upper face of the grip. The blow is struck at a fixed position on the face having the notch. When a striker impacts the specimen will absorb energy till its yield. At this point the specimen will begin to undergo plastic deformation at the notch. The specimen continue to absorb energy and work harden at the plastic zone.
when the specimen can absorb no more energy, fracture take place. Generally, nose type specimen are used for impact test. The nose is the test specimen served to concentrate the stress, minimize plastic deformation and direct the fracture to the part of the specimen behind the nose. Thus, scatter in energy to break in, reduce the stress concentration at the nose, decrease with increase the nose radius. Also used to nose specimen increase the sensitivity and reproductivity of measurement. So this is our specimen which have to support, and this is an anvil where we have kept this specimen. जो स्पेसिमेन का मटेरियल है अपना जनरली अपन लेते हैं माइल्ड स्टील का, अपन जो प्रैक्टिकल करेंगे इस पे यूज़ करेंगे, तो उसको वर्टिकली इस टाइप से एनविल पर लगाते हैं, और ये आपका स्ट्राइकर जो हैमर के साथ लगा होता है इस पर स्ट्राइक करता है. जो अपनी जो साइज है वो जनरली अपन लेते हैं 75, जो स्पेसिफाई किया गया है कि 75 लेंथ है और 10x10 उसका क्रॉस सेक्शन एरिया है. नाउ द प्रोसीजर ऑफ दिस आइजोड इम्पैक्ट टेस्ट. फर्स्ट क्या है, हम मेज़र करते हैं डायमेंशन ऑफ स्पेसिमेन. तो अपना मेज़रमेंट 10x10 उसका क्रॉस सेक्शन होना चाहिए. डेप्थ ऑफ नोज 2 mm और 45 डिग्री एंगल पर वी नोज बनाते हैं हम. और अपर से यह है 28 पर होना चाहिए, और टोटल लेंथ इसकी 75 mm हम रखते हैं. ये अपने इम्पैक्ट टेस्टिंग मशीन है, इस पर जो ये स्केल लगा होता है ये पॉइंटर है, जो कि हमको एनर्जी जो स्टोर की अपने स्पेसिमेन ने जो जिस टाइप का भी मटेरियल अपन लेते हैं उस मटेरियल की जो टफनेस हुई वो डायरेक्ट अपन इस स्केल पर रीड कर लेते हैं. जो पेंडुलम है, जो हैमर लगा होता है, हैमर का वेट लगभग अपन 212 kg होता है. इसके बीच में एक स्ट्राइकर लगा होता है जो कि स्ट्राइक करता है अपने स्पेसिमेन पर. स्पेसिमेन की पोजीशन वर्टिकली हम इस टाइप से उसको लगाते हैं. ये लीवर है इसको ऑपरेट करते ही ये हैमर क्या है, ये फ्रीली स्विंग करता है इसकी एक्सेस ऑफ रोटेशन पर. तो फर्स्ट क्या है, अपन हैमर को यहाँ कनेक्ट कर देते हैं इसकी पोजीशन पर. 90 डिग्री इसका एंगल होना चाहिए. जब इसमें कोई फ्रिक्शन लॉसेस वगैरह कुछ है या नहीं वो चेक करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि स्पेसिमेन के बगैर इसको पोजीशन पे लगा के जब इस लीवर को ऑपरेट करते हैं तो ये स्विंग करता है. अगर ये पॉइंटर 0 शो करता है यानी कि इसके ऊपर कोई भी फ्रिक्शन लॉसेस नहीं है. एक एग्जांपल लेके इसको समझाया गया है कि अपन ने इसको लगाया और जब इसको स्विंग किया तो इस पर फ्रिक्शन लॉसेस जैसे ये आया 4 जूल. तो सबसे पहले हमने इसके फ्रिक्शन लॉसेस निकाल लिए, तो 4 जूल इस पर फ्रिक्शन लॉस आया. अब अपन क्या स्पेसिमेन को अटैच करते हैं वर्टिकली और दोबारा इसको सेम रिपीट करते हैं. इस हैमर को 90 डिग्री पर अटैच किया इसकी पोजीशन पर, और जब लीवर को अपन ऑपरेट करते हैं तो वापस जब ये स्ट्राइक करेगा तो जितना एनर्जी इसमें है वो इस स्केल पर आ जाती है. तो रिलीज द हैमर, नोट द फाइनल रीडिंग. सिंस द एनर्जी स्केल ऑन द इक्विपमेंट इज रिवर्स इन डायरेक्शन, द एनर्जी एब्जॉर्ब कैन बी डायरेक्टली रीड फ्रॉम द स्केल आफ्टर द स्पेसिमेन हैज़ बीन फ्रैक्चर्ड. तो सपोज ये अपने एंगल सॉरी रीडिंग जो आई जूल में वो 46 जूल है. तो ये टोटल लॉस ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग ट्रांसमिट जो हैमर ने ट्रांसमिट की वो थे 46 जूल. तो एनर्जी फॉर फेलर ऑफ द स्पेसिमेन कितना आया, वो जो भी आया 46, उसमें से जो हमारी फ्रिक्शन लॉसेस थे वो जो 4 जूल अपन ने निकाला था वो उसमें माइनस कर देंगे. तो जो फाइनल रीडिंग आएगी अपनी वो ऑब्जर्वेशन में करेंगे. इनिशियल और फाइनल रीडिंग. इनिशियल रीडिंग हैमर की 164 जूल थी. एवरेज लॉसेस अपन ने निकाल लिए, फ्रिक्शन माना कि 2 जूल है. ये
2 जूल 4 जूल जितना भी आया अपना, और टोटल लॉसेज अपन ने निकाले कि 46 था, तो इसमें से माइनस कर देंगे फ्रिक्शन लॉसेज, जो फाइनल जो अपना रिजल्ट बचा वो हमारी स्ट्रेन एनर्जी आएगी उस पर्टिकुलर स्पेसिमेन की। इस टाइप से हम किसी भी मटेरियल की टफनेस को मेज़र कर सकते हैं थ्रू द आइजोड इम्पैक्ट टेस्ट। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे वी हैव परफॉर्म आइजोड इम्पैक्ट टेस्ट। मेन ऑब्जेक्ट जो है इस आइजोड इम्पैक्ट का, ये आइजोड इम्पैक्ट टेस्टिंग मशीन है। ऑब्जेक्टिव और इसका है टू डिटरमाइन टफनेस ऑफ द मटेरियल। तो ये आइजोड इम्पैक्ट टेस्टिंग मशीन है। ये मेन जो कंपोनेंट है इसके, ये हैमर है, साथ में पेंडुलम लगा हुआ है, इसके नीचे ये स्ट्राइकर लगा होता है जो कि स्पेसिमेन जो भी हम जिस मटेरियल का आपको टेस्ट करना है उस पर स्ट्राइक करता है। ये स्केल लगा हुआ है, इस पर डायरेक्ट जो वैल्यू है टफनेस की, जो भी स्ट्रेंथ है उसकी मटेरियल की, वो इसमें आ जाती है। ये देख रहे हो, इसमें 2 स्केल बने हुए हैं, तो इस पर 2 टेस्ट कर सकते हैं, 4P और आइजोड इम्पैक्ट है। तो 4P टेस्ट और आइजोड इम्पैक्ट चेक दोनों इस पर कर सकते हैं। दोनों के लिए अलग अलग स्केल बने हुए हैं इस पर, ठीक है, जो कि डायरेक्ट उसमें एक डिवीजन जो है वो 2 जूल के बराबर है, ठीक है। 4P टेस्ट के लिए इसमें इस जो पेंडुलम को है उसकी हाइट रखते हैं 120 डिग्री पर है ये, और आइजोड इम्पैक्ट टेस्ट के लिए इसको 90 डिग्री पर क्लैम्प करते हैं। ये इसका ब्रेक पैडल है, ब्रेक लगाने के लिए लीवर है ये, जिससे इस पर ब्रेक लगती है, और ये एनविल है जिस पर अपन स्पेसिमेन को टाइट करते हैं। ये इसका स्पेसिमेन है, ये माइल्ड स्टील का है। इसकी जो साइज है वो लेंथ है 75 mm और 10x10 इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है, ठीक है। इस पर एक ये देख रहे हो नोच कटी हुई है, वी नोच काटते हैं, एक मार्क करते हैं और इसकी डेप्थ रखते हैं 2 mm, तो ये वी नोच बना देते हैं यहाँ। इसकी पोजीशन जो होती है इसको वर्टिकली फिक्स करते हैं अपन एनविल पर, जो एनविल है उस पर वर्टिकली पोजीशन, और ये नोज जो है वो हैमर के बिल्कुल सामने होती है, ठीक है। तो इसको परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसको हैमर को, इस पेंडुलम को अपन ने इसको क्लैम्प किया 90 डिग्री पर, और 164 पर क्या है इसके डायल को लगा देते हैं, पॉइंटर को 164 और इसको सेट कर दिया। अब जब ये इसका रिलीज वाल्व है, लीवर है, इस लीवर को जब ऑपरेट करेंगे, रिलीज करेंगे, तो क्या होगा, ये पेंडुलम क्या है रिलीज होके मूव करेगा। तो अभी क्या है, इस पे हाइट है और इस पर पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। जब इसको रिलीज करेंगे तो फ्रीली ये मूव होगा, उसके साथ ये डायल मूव होगा। हम इस पर कोई फ्रिक्शन नहीं है या नहीं है, जो भी फ्रिक्शन लॉसेज है उसको मेजर कर लेते हैं खाली जब इसको छोड़ते हैं। तो इसको रिलीज कर रहे हैं हम, इनिशियली हम क्या है कि पॉइंटर को 164 पे सेट करेंगे और ये पेंडुलम अपना 90 डिग्री पर होगा, और हम इसको खाली रिलीज करेंगे तो इसमें देखेंगे कि कोई इसमें फ्रिक्शन लॉसेस तो नहीं है। इसको ऑपरेट कर रहे हैं, इस पेंडुलम को रोकने के लिए इस पर ये ब्रेक पेड लगे हुए हैं, इस लीवर से इसको ऑन करेंगे, इससे इसमें क्या ब्रेक मिल जाता है, इसको इससे ब्रेक कर पाएंगे। और इधर देखा कि ये पॉइंटर 0 पे आ गया है, तो इस पर जो एनर्जी लॉस है, जो फ्रिक्शन लॉसेज है वो कुछ भी नहीं है। तो जो एनर्जी स्टोर थी वो पूरी की पूरी यहाँ रिलीज हो गई। अब हम क्या करते हैं, इसके बीच में क्या स्पेसिमेन लगा देंगे, तो वर्टिकल पोजीशन में स्पेसिमेन लगाएंगे। तो जब ये स्ट्राइक करेगा हैमर इस मटेरियल को, तो ऑब्वियसली ये इसको स्ट्राइक करेगा तो कुछ एनर्जी इसको डिस्ट्रॉय करने के लिए इसमें लॉस होगी, तो फाइनल को हमारी क्या होगी, वो टफनेस होगी इस मटेरियल की। हम इसका क्या है कि अब हमने कैलकुलेट कर लिया कि इस पर जो लॉसेज है वो 0 है,
वापस हम इस पेंडुलम को, जो इस पर हैमर लगा हुआ है, इस हैमर को हम वापस अपनी स्टार्टिंग पोजीशन पे लगा देंगे इसको। और अब हम ये स्पेसिमेन इस एनिमल पर लगाएंगे। ये इसकी वाइस है, इसको ऐसे वर्टिकली फिक्स करना है और इसके इस नट से इसको टाइट कर देंगे। ये नोच क्या है वो सामने होनी चाहिए। इस पे नट से इसको टाइट कर देंगे हम। वापस इस पॉइंटर को हम इसकी इनिशियल पोजीशन पर सेट कर देंगे। सेट करने के बाद वापस इस लीवर को ऑपरेट करेंगे। स्पेसिमेन आप देख रहे हो ये ब्रेक हो चुका है और ये जो वैल्यू आई है इसको कैलकुलेट कर देंगे। ये आई है 72 डिवीजन है इसके, मल्टीप्लाई बाय 2। ये इसकी जूल में टफनेस आई, इम्पैक्ट स्ट्रेंथ आ गया इसका कि इतनी इस मटेरियल की स्ट्रेंथ है। ये इसका इम्पैक्ट स्ट्रेंथ है। ऐसे ही हम डिफरेंट मटेरियल्स पर ये आइजोड इम्पैक्ट, इसकी हम इम्पैक्ट स्ट्रेंथ निकाल लेते हैं अलग अलग मटेरियल के लिए। फॉर चार्बी टेस्ट इसी प्रोसेस, सेम ही प्रोसेस है, बस इसकी जो लीवर की पोजीशन है वो 90 से ना होके 120 डिग्री हो जाएगी। और जो स्केल है ये बाहर वाला, ये चार्बी टेस्ट के लिए है। तो ऐसे हम डायरेक्टली ये स्केल पर इसकी इम्पैक्ट स्ट्रेंथ शो कर देता है। थैंक यू।